स्टूडेंट्स our next topic is sending the negative message on routine business matters के बाज़ routine business matters ऐसे होते हैं जिस पे you need to send the negative messages. So professionals and companies receive wide range of messages and requests, and they cannot reply, they cannot respond positively to every request. Sometimes they have to respond the request negative or they have to turn down the request. इसका मतलब ये कि बहुत सी जो कंपनीज होती हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको बहुत सी जो है रिक्वेस्ट, बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है वो मिलती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर रिक्वेस्ट को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें. तो सम टाइम दे हैव टू टर्न डाउन द रिक्वेस्ट. उन्हें उन रिक्वेस्ट को जो है वो रद्द करना होता है, रिजेक्ट करना होता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम to reply or to respond every request positively. So occasionally companies must send negative messages to and the companies or the business people have to send the negative message to the suppliers and to other parties and whatever the purpose is. So here the question is crafting a routine negative message कि आपने routine negative message किस तरह से compose करना है, उसको किस तरह से लिखना है. Crafting routine negative responses and messages quickly and graciously is an important skill for every business person. Positive message की तरह negative message लिखना भी और negative message deliver करना and to compose and craft a negative message is also a great skill. एक बहुत अहम skill है and it's very important skill. When you have to deliver the negative message, when you have to turn down the requests of your employees, your other companies और suggestions and proposals, जब आपने इन चीज़ों को जो है वो negatively reply करना होता है, तो ये भी एक skill है कि how you compose, how you craft your negative message. So number one is that making negative announcements and routine business matters. कि उस वक़्त आपने how you can craft, how you can write and how can you make negative announcements. आपने कोई भी अगर negative announcement करनी है, कोई भी bad news deliver करनी है, negative news announce करनी है, या फिर और कोई routine आपके business matters हैं, तो उसके लिए आप जो है how will you craft negative message. तो आप नेगेटिव मैसेज जो है वो किस तरह से जो है उसके लिए जो है वो आप क्राफ्ट करेंगे और किस तरह से नेगेटिव मैसेज लिखेंगे. मैनी नेगेटिव मैसेजेस आर रिटन इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल कॉरस्पॉन्डेंट, बट on occasion manager needs to make unexpected announcements of a negative nature. बाज़ों का जो मैनेजर हैं उनको बाज़ों का गैर मुतवक्का तौर पर sometimes they have to make unexpected announcements of negative nature, negative news, negative messages. For unexpected negative message on routine matters we use इनडायरेक्ट अप्रोच. और आपको पता है कि इनडायरेक्ट अप्रोच का क्या फॉर्मेट है, वो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि यू ओपन योर मैसेज, यू ओपन योर नेगेटिव मैसेज विद अ बफर, देन यू गिव द डिटेल्स एंड एडिशनल देन यू गिव द रीज़न, देन यू गिव द डिटेल एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन and explanation, and then you give the positive angle, and at the last you close it respectfully. So for unexpected negative message on routine matters, the indirect approach is usually more appropriate. Follow the steps outlined for negative message. वो वही steps हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि buffer और उसके बाद जो है वो reasoning और all these things. Open your message with a buffer, then establish some mutual ground between you and the reader. Then you go for explanation and detailed information, and then you announce the actual announce the actual change or actual negative news, and then you close with the much positive information. So that would be the format. तो ये format होगा, and you will choose that indirect strategy to deliver that negative announcements or negative messages on routine business matters. Second thing is that when you have to reject suggestions and proposals. अगर आपकी कंपनी में जो है आपको आपके जो सबऑर्डिनेट हैं, अगर वो आपको कोई सजेशंस देते हैं, कोई प्रपोजल्स देते हैं, तो फिर आप सम टाइम जो है यू हैव टू रिजेक्ट इट. आपको जो है वो रिजेक्ट करना पड़ता है. ज़रूरी तो नहीं है कि आप हर प्रपोजल और हर सजेशन को एक्सेप्ट करें. सो रिजेक्टिंग सजेशंस एंड प्रपोजल पर्टिकुलरली इफ़ यू आस्क्ड फॉर इनपुट रिक्वायर्स स्पेशल केयर एंड टैक्ट, बिकॉज यू नीड टू मेंटेन अ पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप. जब आपने किसी भी रिजेक्ट करना है किसी सजेशन को या किसी प्रपोजल को, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल.
उसकी वजह ये है कि स्पेसिफिकली उस वक्त जब आपसे ये कहा जा रहा है इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिव योर ओपिनियन फॉर योर इनपुट, तो यू नीड अ स्पेशल केयर, अ स्पेशल टेक्निक, स्पेशल टेक्ट, बिकॉज इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू नीड टू मेंटेन योर पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप विद द ऑडियंस और विद द रीडर और विद द रिसीवर, कि आपने अपने इसके साथ साथ जो है वो आपने अगर आपने उसकी सजेशन या प्रपोजल को रिजेक्ट करना है तो इसके साथ साथ आपने एक पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना है। मैनेजर्स रिसीव्स अ वैरायटी ऑफ सजेशंस एंड प्रपोजल्स। किसी भी कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं वो उनको बाज़ों का जो है वो वैरायटी ऑफ दे गेट वैरायटी ऑफ प्रपोजल्स, उनके पास बहुत सी सजेशंस आती हैं, बहुत से प्रपोजल आते हैं। बोथ कैन बी सॉलिसिटेड भी हो सकते हैं और अनसॉलिसिटेड भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। सो अब इसमें दो चीज़ें हैं। फॉर एंड अगर आपके पास प्रपोजल जो है वो अनसॉलिसिटेड है, इफ़ द प्रपोजल इज अनसॉलिसिटेड प्रपोजल फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, you may not even need to respond if you do not already have a working relationship with the sender. तो उसमें एक तरीका तो ये है कि अगर आपका अनसॉलिसिटेड प्रपोजल है, ठीक है जी, अगर आपका प्रपोजल जो है वो अनसॉलिसिटेड प्रपोजल है, मैंने आपको बताया था कि सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड का क्या मीनिंग होता है। सॉलिसिटेड का मतलब होता है टू मेक समवन एग्री टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए एग्री करना। तो सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड में अगर आपका जो प्रपोजल है वो अनसॉलिसिटेड प्रपोजल है फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स और सोर्स एक्सटर्नल है, तो आप बेशक उसको जवाब ना दें। यू मे नॉट इवन नीड टू रिस्पॉन्ड इफ़ यू डू नॉट हैव ऑलरेडी अ वर्किंग रिलेशनशिप विद द पर्सन और विद द सेंडर। अगर आपका उस सेंडर के साथ ऑलरेडी कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है तो इट्स ओके अगर आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो इट विल ओके। लेकिन उस सूरत में कि अगर आपका मैसेज जो है वो क्या है, अनसॉलिसिटेड है, और दूसरी बात ये कि अगर मैसेज अनसॉलिसिटेड होने के साथ साथ एक्सटर्नल है, तो उस सूरत में जो है वो आप जो है वो उसको रिस्पॉन्ड ना करें। और अगर जो है हाउएवर इफ़ यू नीड टू रिजेक्ट अ प्रपोजल, लेकिन अगर प्रपोजल जो है टू रिजेक्ट, अगर आपने वो वाला प्रपोजल रिजेक्ट करना है, इफ़ यू नीड टू रिजेक्ट अ प्रपोजल यू सॉलिसिटेड, यू नीड टू गिव, तो फिर आपको जो है यू नीड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, आपको उसके लिए जो है वो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगी सेंडर को, एंड देन यू शुड गिव एन एक्सप्लेनेशन टू द सेंडर, एंड बिकॉज द न्यूज़ विल बी अनएक्सपेक्टेड एंड इनडायरेक्ट अप्रोच इज़ बेटर, क्योंकि वो न्यूज़ उनके लिए अनएक्सपेक्टेड होगी और हम वो न्यूज़ उसको अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ किस तरह से डिलीवर करेंगे, थ्रू एन इनडायरेक्ट अप्रोच। इन जर्नल you need to be more thoughtful and complete in your response in the closer your working relationship। यानी कि आपने जो उसके बाद जब अपने मैसेज को क्लोज करना है तो यू नीड टू बी मोर थाटफुल एंड मोर कंप्लीट इन योर रिस्पॉन्स। आपका रिस्पॉन्स जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, थाटफुल होना चाहिए, और क्योंकि यू वांट टू मेंटेन अ वर्किंग रिलेशनशिप विद द सेंडर। इफ़ यू आर, मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रिजेक्टिंग अ प्रपोजल फ्रॉम एन एम्प्लॉय, explain your reason fully and carefully so that employee can understand why the proposal was not accepted and so that you do not damage any important working relationship। अगर मिसाल के तौर पर अगर आप कंपनी के मैनेजर हैं और आपको प्रपोजल जो है वो आपके इनवर्डली या इंटरनल आपके किसी एम्प्लॉय ने जो है वो प्रपोजल जो है वो दिया है और प्रपोजल जो है वो सॉलिसिटेड प्रपोजल है, तो फिर इट इज़ योर ड्यूटी टू गिव द एक्सप्लेनेशन। तो फिर आपने जो है उसको जो रीज़न देनी है, यू नीड टू प्रोवाइड कंप्लीट रीज़न, यू नीड टू एक्सप्लेन एंड गिव ऑल द डिटेल्स फुली एंड केयरफुली, सो दैट ताकि जो एम्प्लॉय है, सो दैट द एम्प्लॉय कैन अंडरस्टैंड वाई द प्रपोजल वाज नॉट एक्सेप्टेड, ताकि जो आपका एम्प्लॉय है वो उसको ये बात समझ आ सके कि उसका प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ, और उसका जो अगर प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उसके पीछे जो है वो क्या रीज़न थी, ठीक है। सो दैट द एम्प्लॉय कैन अंडरस्टैंड व्हाई द प्रपोजल वाज नॉट एक्सेप्टेड एंड सो दैट यू डू नॉट डैमेज, और फर्दर जो है उस कोई जो है इससे आपका जो वर्किंग रिलेशनशिप है उससे डैमेज ना हो। अगर सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड की अगर हम बात कर लें तो उसको आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि अगर उर्दू में आप सॉलिसिटेड का मतलब देखें तो इट मीन्स दैट किसी को जो है वो दरख्वास्त करना, किसी से कुछ करने के लिए कहना, सॉलिसिटेड, ठीक है जी।
अब आते हैं जी रिफ्यूजिंग रूटीन रिक्वेस्ट। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपसे रूटीन रिक्वेस्ट कोई आपका एम्प्लॉय या सम टाइम रूटीन रिक्वेस्ट जो है वो की जाती हैं, सो सम टाइम यू हैव टू रिफ्यूज़ द रूटीन रिक्वेस्ट। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर वो छुट्टी पे जाना चाहते हैं, एक रूटीन मैटर है, एक रूटीन रिक्वेस्ट है, बट यू डोंट वांट टू अलाउ, और आप उसको अलाउ नहीं करना चाहते, तो यू हैव टू टर्न डाउन द रिक्वेस्ट, आप उसकी रिक्वेस्ट को रद्द कर देंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे। तो व्हेन यू आर अनएबल, तो उस सूरत में आप कैसे जो है वो मैसेज को हैंडल करते हैं, या हाउ यू टर्न डाउन और हाउ यू क्राफ्ट द मैसेज। So when you are unable to meet a routine request, your primary communication challenge is to give a clear negative response. तो फिर उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप उसको क्लियरली नेगेटिव रिस्पॉन्स दे दें। उसको आपने कोई हिडन वर्ड्स में नहीं रखना, विदाउट जनरेटिंग नेगेटिव फीलिंग। लेकिन ये नहीं कि आप उसको कोई बुरा बुला के उसके कोई अपने फेस इंप्रेशन से उसको नेगेटिव फीलिंग भी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू बी नेगेटिव, यू क्लियरली से नो or clearly give a negative response without generating negative feelings or damaging either your personal reputation or the company reputation, और ताकि आपकी अपनी पर्सनल रेपुटेशन और रिप्यूट भी ख़राब ना हो और आपकी कंपनी की रेपुटेशन भी ख़राब ना हो। एज सिंपल एज दीज मैसेजेस में अपीयर टू बी, दे contest your skill, so they can test your skills as a communicator because you often need to deliver negative information while maintaining a positive relationship with the person or with the other party। देखने में बज़ाहिर ये मैसेजेस बहुत सिंपल लगते हैं, और सम टाइम ये होता है कि दीज मैसेज सीम्स टू एज सिंपल एज दीज मैसेज अपीयर टू बी। बाज़ वक़्त ये मैसेज इतने सिंपल होते हैं, बट दीज मैसेज कैन टेस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन इन मैसेजेस से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का पता चलता है कि देखने में तो वो बज़ाहिर जो अपरेंटली वो एक आम रूटीन रिक्वेस्ट होती हैं। किसी एम्प्लॉय ने अगर छुट्टी पे जाना है या किसी को अगर अपनी सैलरी इन एडवांस चाहिए, तो देखने में ये जो है वो बड़ी कॉमन सी बड़ी रूटीन सी रिक्वेस्ट होती है। एंड यू क्लियरली, अगर उसका रिस्पांस नेगेटिव है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन चैलेंज ये होता है, नंबर वन, यू गिव द नेगेटिव रिस्पांस बट विदाउट जनरेटिंग नेगेटिव फीलिंग। अब उसमें जो है इस तरह के जो मैसेज होते हैं, दे कैन टेस्ट योर स्किल्स एज अ कम्युनिकेटर कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बिकॉज यू ऑफन नीड टू डिलीवर अ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन वाइल मेंटेनिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द अदर पार्टी। उसमें आपको नेगेटिव न्यूज़ तो डिलीवर करना होती है, लेकिन उसके साथ साथ यू हैव टू सेव योर वर्किंग रिलेशनशिप विद द पर्सन, यू हैव टू मेंटेन वाइल मेंटेनिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द अदर पार्टी। दूसरी सामने वाली पार्टी के साथ आपको अपना पॉजिटिव रिलेशनशिप भी मेंटेन करना होता है। सो ये इसलिए जो है सम सॉर्ट ऑफ द मैसेजेस और द रिक्वेस्ट कैन टेस्ट योर स्किल्स एज अ कम्युनिकेटर। द डायरेक्ट अप्रोच वर्क्स बेस्ट फॉर द मोस्ट रूटीन नेगेटिव रिस्पॉन्सेज। जो इस तरह के नेगेटिव रूटीन रिक्वेस्ट होती है, रिस्पॉन्सेज होती हैं, उसके लिए वी चूज़ डायरेक्ट स्ट्रेटजी। यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेटजी में क्या होता है, आपको अगर उसका फॉर्मेट देखें तो जो हमने डिस्कस किया था कि इन डायरेक्ट स्ट्रेटजी इन द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट यू जस्ट से द नो, यू जस्ट स्ट्रेट अवे टेल द नेगेटिव न्यूज़। आप जो नेगेटिव न्यूज़ जो है वो पहली स्टेटमेंट में जो है वो डिलीवर कर देते हैं। जबकि अगर आप वो हम इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी देखें, और अभी हमने देखा था कि जब आपने इस किस्म के जो है नेगेटिव अनाउंसमेंट्स करनी होती हैं या बिजनेस मैटर के रूटीन बिजनेस मैटर्स की को नेगेटिवली रिस्पॉन्स करना होता है, तो फिर आप इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट नहीं यूज़ करते। लेकिन यहाँ पर जो है जो इस तरह की रूटीन रिक्वेस्ट होती हैं, तो उसमें द डायरेक्ट अप्रोच वर्क्स बेस्ट फॉर मोस्ट रूटीन नेगेटिव रिस्पॉन्सेज बिकॉज इट इज़ सिंपल एंड मोर एफिशिएंट। क्योंकि जो डायरेक्ट अप्रोच होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है और ज़्यादा सिंपल होती है। You need to consider the following points as you develop routine negative message। जब आप इस तरह के routine negative messages लिख रहे हो तो उसके लिए आपको चंद चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। You should consider the following points as you develop routine negative message। Number one, manage your time carefully। Number two, if the matter is closed, do not imply that it is still open by using phrases such as let me think about it or please wait or लेट मी रिकन्सिडर इट। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर एक मामला ख़त्म हो गया तो उसको दोबारा से रीओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इस किस्म के अल्फाज दोबारा से, इस किस्म के फ्रेजेस, इस किस्म के वर्ड्स यूज़ ना करें जिससे जो है वो अगले नेक्स्ट पर्सन को, जो सामने वाली पार्टी है, उसको कोई होप मिले, या इस किस्म के फ्रेजेस को अवॉइड करें जैसे लेट मी थिंक अबाउट इट और इस तरह के। ठीक है जी। थर्ड थिंग इज़ दैट ऑफर अल्टरनेटिव्स। अगर कोई उसका सब्स्टिट्यूट है, उसका कोई ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन है या कोई और अल्टरनेटिव है, यू कैन गिव द अल्टरनेटिव्स ideas if you can, particularly if the relationship is important, और ख़ासकर अगर वो working relationship important है। Fourth is do not imply that other assistant or information
माइट बी अवेलेबल इफ़ इट इज़ नॉट, और ना ही इस किस्म की कोई फॉल्स होप दें कि आपको जो है इसके अलावा इस नेगेटिव मैसेज के डिलीवर करने के बाद जो है फ़र्दर कोई असिस्टेंस, कोई हेल्प या कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो. So you need to consider these following points as you develop routine negative messages. The next thing is that the next handling bad news about transactions. बाज़ ये होता है कि कंपनीज़ को ट्रांजेक्शन्स करती हैं, कंपनीज़ जो है ट्रांजेक्शन्स का मतलब आपको पता है मनी ट्रांसफ़र, जैसे हम बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो बाज़ जो है वो आपको ट्रांजेक्शन्स के बारे में जो है वो नेगेटिव न्यूज़ देना पड़ती हैं. तो हाउ कैन यू हैंडल दैट बैड न्यूज़ विच आर अबाउट ट्रांजेक्शन्स. किसी की सैलरी डिले हो गई है या कोई और पेमेंट जो थी वो ड्यू है, वो पेमेंट जो है वो अभी नहीं हो आप कर पा रहे, तो ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो है बैड न्यूज़ वो कैसे आपने डिलीवर करनी है. बैड न्यूज़ अबाउट ट्रांजैक्शन इज़ ऑलवेज अनवेलकम एंड अनएक्सपेक्टेड एंड यूजुअली अनएक्सपेक्टेड. जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो बैड न्यूज़ होती हैं वो यूजुअली जो है वो ऑलवेज अनवेलकमिंग, वो हमेशा अनवेलकमिंग होती हैं और यूजुअली जो है वो अनएक्सपेक्टेड होती हैं. व्हेन यू सेंड सच मैसेजेस यू हैव 3 गोल्स. जब आप इस किस्म के मैसेजेस भेजते हैं तो आपके पास 3 गोल, आपको 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है. यू हैव 3 गोल्स. नंबर 1, modify the customer's expectations. Number 2, explain how you plan to solve or how you plan to resolve the situation. And number 3 is repair whatever damage might have been done to the business relationship. यानी कि modify the customer expectations, आपने कस्टमर की जो expectations थी उसको modify करने की ज़रूरत है. नंबर 2, आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि हाउ यू आर गोइंग टू रिजॉल्व द इशू, कि आप व्हाट इज़ योर प्लान टू रिजॉल्व दैट सिचुएशन, कि आपका क्या प्लान है, आपके जहन में क्या चल रहा है, कि हाउ यू आर गोइंग टू रिजॉल्व दैट इशू, आप इस इशू को कैसे रिजॉल्व करेंगे, हाउ यू प्लान टू रिजॉल्व द सिचुएशन, इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे. नंबर 3 इज़ देयर रिपेयर वट एवर डैमेज. अगर उससे कोई आपका वर्किंग रिलेशनशिप डैमेज हुआ है तो ट्राई टू रिपेयर इट. रिपेयर वट एवर डैमेज माइट हैव बीन डन टू द बिजनेस रिलेशनशिप. अगर आपकी ट्रांजैक्शन की डिले होने की वजह से कोई बिजनेस वर्किंग रिलेशनशिप आपका डैमेज हुआ है तो ट्राई टू रिपेयर इट. द स्पेसिफिक कंटेंट एंड टोन ऑफ ईच मैसेज कैन वेरी वाइडली. अब वो इट वेरीज, जो हर मैसेज की जो कंटेंट होगा, जो टोन होगी, वो मैसेज टू मैसेज, ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन वेरी करेगी. एंड इट कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड योर रिलेशनशिप विद द कस्टमर. और ये डिपेंड करता है आप किस किस्म की ट्रांजैक्शन थी, कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन थी और आपका कस्टमर के साथ क्या रिलेशनशिप था. योर अप्रोच टू बैड न्यूज़ अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शंस डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस. इफ़ यू आर failed to meet expectations that you set for the customer, an element of apology should be considered. अगर आप अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरे, अगर आप इफ़ यू आर फेल टू मीट विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर कस्टमर, देन यू नीड टू मेक एन अपॉलॉजी. तो फिर आपको एक्सक्यूज़ करनी चाहिए. यू नीड टू मेक एन अपॉलॉजी. एन एलिमेंट ऑफ अपॉलॉजी शुड बी कंसिडर्ड. तो फिर उसमें आपको अपॉलोजेटिक होने की ज़रूरत है. अपॉलॉजी का जो एलिमेंट है उसको कंसिडर करने की ज़रूरत है. To help repair the damage of the relationship and encourage repeat business, many companies offer. बाज़ औक़ात ये होता है कि अब कुछ कंपनीज़ की पॉलिसी ये होती है कि अगर जो डैमेज हो गया ट्रांजैक्शंस की वजह से, तो उस वर्किंग रिलेशनशिप को रिपेयर करने के लिए, जैसे अभी मैंने ऊपर 3rd पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया था, मेंशन किया था कि रिपेयर वट एवर डैमेज माइट हैव बीन डन टू द बिजनेस रिलेशनशिप, उसको आपने यू नीड टू रिपेयर इट, आपने उसको रिपेयर करने की कोशिश करनी है. तो सम टाइम ऐसा होता है कि टू help repair the damage of that relationship and encourage to repeat business, many companies offer discounts. बहुत सी कंपनीज़ क्या करती हैं, वो अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट्स दे देती हैं या फिर उनको फ्री कूपन्स दे देती हैं, फ्री मर्चेंडाइज दे देती हैं और अदर कंसिडरेशंस, या फिर उनको इस किस्म की जो है ऑफ़र्स देती हैं जिसकी वजह से, और जब वो इस किस्म की ऑफ़र्स देती हैं तो दे ट्राई टू रिपेयर दैट डैमेज रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स. उसके बाद जी हमारे पास एक अगला पॉइंट है रिफ्यूजिंग क्लेम्स एंड रिक्वेस्ट फॉर एडजस्टमेंट्स. आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा. इसको हम जूम क्लास में डिस्कस कर लेंगे लास्ट पॉइंट को, क्योंकि अब ऑडियो जो है मज़ीद लंबी हो जाएगी और उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा. इसको आप देख लीजिएगा. वो विल द लास्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इन द क्लास एंड द टॉपिक विल बी कम्प्लीटेड. और उसके बाद ये टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हमारा एक टॉपिक है इस चैप्टर का, वो मैं आपको जूम की क्लास में बताऊँगी व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दैट टॉपिक. थैंक यू.